प्रांगण में ये मीट का कारोबार जो है चल रहा है। आपको क्या लेना देना? I remember once I had gone to Mumbai, and as I had stepped outside the airport and hopped inside an Uber, the driver had asked me where I am from, and I said I'm from Kolkata. The moment he learned that I'm from Kolkata, he said, "अरे आप तो मछली खाने वाले बंगाली है?" And I said, "हाँ, हम है." And I said that with a lot of pride, because fish is essentially part of the Bengali identity. Not all Bengalis eat fish, but most of the Bengalis eat fish. We love fish, and we never bother to explain to anyone as why we love fish. Now, in New Delhi CR Park, there are two markets. One is CR Park Market 1 and there is another market called CR Park Market 2. Chittaranjan Park Avenue, CR Park, is primarily a Bengali dominated neighborhood in New Delhi, where these two markets have been existing for decades put together and had never made it to the headline, not up till yesterday, as Trinamool Congress Member of Parliament Moha Moitro had put out a video. सभी भाइयों से यही आदेश है कि जो भी मंदिर के साथ ये बाजार है तो इसमें जो है ये होना नहीं चाहिए, पर हमारा क्या मंदिर का जो परिषद है ना वो शुद्ध रहना चाहिए। मंदिर के जस्ट दीवार के साथ ये गलत है। मैं सनातन तो यही कहता है ना कि हम किसी को काट नहीं सकते। आप कहने वाली बात हो जाती है कि देवी को मीट चढ़ता है, वो एक मनगढ़ंत बातें हैं जो शास्त्रों में अभी तक कोई प्रूफ में नहीं है। जो मान रहा है, पर मंदिर के साथ जो चीज हो रही है ना वो कहीं ना कहीं हमें सभी सनातनियों को ठेस पहुंचा रही है। कहते हैं इस बात में दिक्कत है तो मुझे बता दो। डीडीए की भी चूड़ियां कसी जाएगी, डीडीए कोई ऐसे भाग नहीं सकता। डीडीए ने जो गलतियां की है हम उसको भी सुधारेंगे। और मंदिर की मर्यादा सिर्फ हम नहीं देख रहे भाई, आप नहीं देख रहे, पूरा हिंदुस्तान। जब पूरा देखो सीआर पार्क बहुत बहुत शहरी है, यहाँ पे फॉरेनर्स भी आते हैं। जब हम खुला था, हाँ मार्केट जब हुआ था उसके साथ ही मार्केट वालों ने एक मंदिर खोला था। ठीक है, पूजा करके हाँ वो तो मेरे को ध्यान में है। मैं इसी एरिया सबसे चल रहा है, चल तो रहा है भैया, पर क्या होता है देखो मैं कानून की लड़ाई लड़ूंगा वो थोड़ा प्रक्रिया में आ जाएगा, पर मेन मुद्दा ये है कि मंदिर के जस्ट साथ ये गलत लग रही है। ये मेरे को समझ नहीं आ रहा। ये जितनी भी शॉप्स है ना, वो हमारी भावनाएं आहत हुई हमें देख करके ये चीज कि भाई इस प्रकार से जो है बिल्कुल दीवार से लगते हुए आप जो है जीव हत्या कर रहे हैं हनुमान जी का मंदिर होते हुए। अरे हनुमान जी का तो जो है तो कई सारे मंदिरों में हो रहा है भाई साहब, कई सारे मंदिरों में। आप आसाम में चले जाइए, कामाख्या देवी में भी जीव नहीं समझ रहे वो उन उस पर आवाज तो उठाई जा रही है। अब हम भी आवाज उठा रहे हैं कि भाई इस प्रकार से डीडीए ने जो है ये मार्केट जो यहाँ पे अलॉट कर। Now there are two temples at CR Park Market 1. One is a Kali Mandir, which is little outside the market, and then there is a Hanumanji Mandir, which is right next to the market. Now these temples have coexisted with the market as as commerce has coexisted with spirituality, and no one had ever objected to the coexistence until two gentlemen decided to walk into the market and raise their objection to the very fact that a fish market, also known as the Bengali fish market, had been existing there right next to the Hanuman temple. Now, after Moha Moitro had put out that video, this quiet market almost became at the epicenter of a larger debate, a larger heated debate, one that raises questions about identity, religion, and the very nature of coexistence in our increasingly polarized society. And I use that word very consciously. No one can deny that. But soon after that, the entire issue got politicized. BJP IT cell in charge, Amit Malviya, had put out a counter video. And in that video, a gentleman could be seen walking inside the fish market, inquiring as whether that has actually happened or not. Now, Amit Malviya identified the gentleman who was doing that as a journalist. Fair enough. Now, that video, in that purported video, the gentleman, the so-called journalist, is claiming that nothing of this sort has happened. यहाँ पर आप लोगों को किसी ने धमकी दी, कोई बदतमीजी हुई, किसी ने कहा दुकान बंद करिए?
ऐसा कुछ नहीं हुआ है भैया, आपके साथ हुआ हुआ है ना कुछ? हम देखिए सुबह से शाम रात तक नहीं रहते मार्केट में तुरंत, ऐसा कुछ नहीं। कहा जा रहा है कुछ गुंडे आए आपको धमकी दी कि तुरंत दुकानें बंद करिए, फिश मार्केट है बगल में है, वरना ये वो कर देंगे, ऐसा कुछ हुआ? बंद करने के लिए ऐसा कुछ है नहीं। अब आप सोचिए, ग्राउंड जीरो से मैंने आपको रिपोर्ट दिखाई, फिश मार्केट से, पंडित से, यहाँ के प्रेसिडेंट से, सबका कहना है कि पूरा मामला फेक है। महुआ मोइत्रा ने झूठी लोकप्रियता के लिए ये वीडियो ट्वीट करके इस इलाके का माहौल खराब करने की कोशिश की है। So Amit Malviya called it a ground report और आप देख ही सकते हैं कितना बढ़िया ground report है. Not commenting on that, but question is who is speaking the truth, Amit Malviya or Mohua Moitra? And it turns out that Mohua Moitra's video is indeed a genuine one. How do we say this? Now the two gentlemen seen in the video, they run a social media handle named Rashtra Dharma. Very good. And they themselves have shared these videos in multiple clips. Again, very good. सभी भाइयों से यही आदेश है कि जो भी मंदिर के साथ ये बाजार है तो इसमें जो है ये होना नहीं चाहिए। पर हमारा क्या है, मंदिर का जो परिषद है ना वो शुद्ध रहना चाहिए। मंदिर के जस्ट दीवार के साथ ये गलत है। मैं सनातन तो यही कहता है ना कि हम किसी को काट नहीं सकते। आप कहने वाली बात हो जाती है कि देवी को मीट चढ़ता है, वो एक मनगढ़ंत बातें हैं जो शास्त्रों में अभी तक कोई प्रूफ में नहीं है। जो मान रहा है, पर मंदिर के साथ जो चीज हो रही है ना वो कहीं ना कहीं हमें सभी सनातनियों को ठेस पहुंचा रही है। कहते हैं इस बात में दिक्कत है तो मुझे बता दो। डीडीए की भी चूड़ियां कसी जाएगी, डीडीए कोई ऐसे भाग नहीं सकता। डीडीए ने जो गलतियां की है हम उसको भी सुधारेंगे। और मंदिर की मर्यादा सिर्फ हम नहीं देख रहे भाई, आप नहीं देख रहे, पूरा हिंदुस्तान। जब पूरा देखो सीआर पार्क बहुत पॉश एरिया है, यहाँ पे फॉरेनर्स भी आते हैं, उनके भाव अपने क्या लेके जाते होंगे वो कि मंदिर के साथ मीट बजा रहा है और बात हम कर रहे हैं विश्व गुरु बनने की। आप भी समझते हो ये हम विश्व गुरु तब बन सकते हैं जब रियल में हम एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें। अब अंत में लेकिन हम कैसे क्या करें? नहीं, चलिए एक मिनट नहीं, हम पूरी तैयारी में है, कर रखे हैं। हम चाहें तो यहाँ पे सुबह 100 बंदा बिठा के हनुमान चालीसा दिन रात बढ़ाते रहे। अंत में डीडीए वालों से भी अपील करना चाहेंगे कि जो ये मंदिर से लगता हुआ जो ये मीट मार्केट है, इनके लिए कोई ना कोई दूसरी व्यवस्था की जाए। So let's identify who these two individuals are. Now one is Kartik Tyagi and the other one is Robin. He is Kartik Tyagi and he is Robin. Now these two individuals are basically Murti collectors. Murti, God, Bhagwan ki Murti. So they collect all those Murtis. If they find such Bhagwan ki Murti strewn somewhere, thrown somewhere, neglected somewhere, they collect them. They rescue all those Murtis and then they take care of those Murtis. Now, I'm not really sure if this is their profession or this is just a passion. If this is just a passion, then question is what is the profession that is helping them sustain such a passion? We all need roti kapra makan, and in order to afford roti kapra makan, we all need a source of income. So we are just trying to understand what is their source of income. Nonetheless, we spoke to these two gentlemen, Kartik Tyagi and Robin. Kartik ji सबसे पहले and Robin जी सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। सर ये इंसिडेंट कब का है? सर ये इंसिडेंट आज से 25 से 30 दिन पहले का है, जब हम वहां से खंडित प्रतिमाएं उठा रहे थे उस मार्केट से आगे, मंदिर के आगे से। हमारा उद्देश्य मेन दिल्ली में कहीं भी अगर भगवान की खंडित प्रतिमाएं होती है वो उठा के उनको विसर्जित करना होता है आदर से। बाई चांस हमारे एक फॉलोअर ने वो वीडियो देख के बताया कि यहाँ पे हम मंदिर जाते हैं हमारी भावनाओं को आहत होती है, तो हमने जब सारा उसका रिसर्च किया, वो मार्केट बंगाली हिंदुओं की है, तो हम एज ए वार्तालाप उनसे बात करने के कि भैया यहाँ पे हिंदू आते हैं, भक्ति करते हैं, उनकी आस्था को दिक्कत होती है, तो आपको क्या सही लगता है कि यहाँ पे मार्केट एकदम बिल्कुल 1 इंच का भी गैप नहीं, अगर आप वहां जाओगे आपको क्या सही लगता है? तो उनसे भी यही बात हुई कि वो कहते हैं कि काफी टाइम से चल रही है। फिर मैं सेकंड टाइम, हम कार्तिक और मैं गए, फिर हमारी उनसे बात यही हुई कि अगर कुछ बीच का रास्ता निकल जाए ताकि डीडीए आपको कोई मार्केट अवेलेबल करवा दे, ताकि मंदिर की जो सम्मान और प्रभुता है वो भी मतलब बची रहे, और ताकि लोगों की आस्था पे भी दिक्कत ना आए और आपका भी रोजगार चलता रहे। और किसी में भी हमारा धमकाने का कोई भी प्रयोग नहीं किया गया। रॉबिन जी, आप कह रहे हैं कि पहले दफा आप लोग 25 दिन पहले गए थे, उसके बाद जी, फिर से आप लोग गए, तो दोबारा जब गए ये 8-10 दिन पहले गए,
4-5 लोगों से बात करने। ये वीडियो जो है ये 10 दिन पुराना है या 25 दिन पुराना है? सर ये स्टार्टिंग 25 से 30 दिन पुराना मैटर है। नहीं, स्टार्टिंग मैटर तो मैं समझ गया, लेकिन ये जो वीडियो सामने आया है, ये वीडियो कब का है? 10 दिन पुराना है या 25 दिन पुराना है? ये जो वायरल अगर आप देख रहे हो वीडियो को, जो सांसद जी ने जो पोस्ट की है वो उन्होंने मर्ज करके की है। हमारी ये लास्ट 8 से 10 दिन पहले की वीडियो है। सर ये सीआर पार्क का कौन सा मार्केट है? ये मार्केट 1 है, सीआर पार्क है। अच्छा, तो आप लोग गए थे उधर पे, आप लोग ने बात भी किया। जो वीडियो है उसमें आप लोग ही दिख रहे हैं। हाँ जी सर, हम ही हैं। ये एआई जनरेटेड वीडियो नहीं है ना? नो सर। ओके सर, आप लोग कह रहे हैं आप मार्केट के जो फिश मार्केट है उनके वेंडर्स से आप लोग ने बात किया? जी सर। उनको समझाया? हाँ जी, नहीं समझाया नहीं, सिर्फ बात की कि सर इसका कोई बीच का रास्ता निकलना चाहिए। और मेरे पास वो पूरी बकायदा वीडियो भी है, अभी मैं अपने चैनल जागो भारत पे पोस्ट भी करूंगा, जिससे जो भ्रांतियां फैल रही है ताकि वो क्लियर हो सके। सर आप लोग जागो भारत जो संस्था है, क्या संस्था है सर? ये संस्था नहीं है, एक्चुअल में मैंने जागो भारत नाम इसलिए दिया था क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में क्या, कुछ हिंदू लोग खंडित प्रतिमाओं को पेड़ों के नीचे ऐसे कहीं भी फेंक देते हैं ताकि उनको जगाने का काम करते हैं। सिर्फ हमारा मकसद वो चैनल का बनाने का यही मकसद था। सर आपने कहा किसी ने आप लोगों से कंप्लेन किया कि उनके आस्थाओं को हर्ट हो रहा है। हाँ जी। किसने कंप्लेन किया सर? सर ये हमारे कोई मैसेज आया था कमेंट में। सर ये देखिए, आस्था, क्योंकि हम दिल्ली के अंदर रहते हैं, दिल्ली के अंदर एक नियम है, 150 मीटर दूर पर जो है मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, किसी भी धार्मिक स्थल से 150 मीटर की दूरी पर जो है आपका मीट का कारोबार होगा, उसके नजदीक नहीं होना चाहिए। देखिए हमारी जो है कोई भावना ये नहीं थी कि भाई वो भी हिंदू है जो वहां पे व्यापार कर रहे हैं, वो हम भी हिंदू हैं, और वो जो मार्केट है वो भी हिंदू, जो मंदिर है वो भी हिंदू का बजरंग बली का मंदिर है। ठीक है, हम जब वहां पर पहुंचे तो देखा कि भाई इस तरीके से हमारी खुद धार्मिक भावनाएं आहत हुई, क्योंकि भाई जहां पर जो है बजरंग बली को लहसुन प्याज तक का पराजित वो माना जाता है, वहीं पर जो है फिश कट रही है उनके मंदिर के बैक साइड में। तो इसको, इन सब चीजों को देख करके हमारी धार्मिक भावनाएं आहत हुई, और हम हिंदू हैं, हमने अपनी बात जो है आज सोशल मीडिया के माध्यम से जो है हमने लोगों तक पहुंचाई। बस सिंपल, इस पर जो है महुआ मल्होत्रा द्वारा जो है उसको कनेक्टेड कर करके, कट कर करके 2 से 3 वीडियो को जो है मर्ज के ये पोस्ट किया गया है। नहीं सर, ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपने कहा कि आप भावनाओं को ठेस पहुंचा, किसी ने आपको कंप्लेन किया। कार्तिक जी कह रहे हैं कि आप लोग खुद का भावना ठेस पहुंचा है, आप लोग इसीलिए चले गए बात करने। जब हम वहां पहुंचे, जब हम वहां पर पहुंचे तो हमारी भावनाएं जो है आहत हुई वो चीज देख करके। तो हमने उनसे आग्रह किया, रिक्वेस्ट की कि भाई ये जो मार्केट है, हमने बातचीत करी। अब एक बात बताइए, अगर किसी ने हमें बताया कि भाई वहां पे इस तरीके से चीज हो रही है, अब जाकर के वहां हमने हाउल्ला तो नहीं काटा कुछ, हमने कहीं वहां पे हाउल्ला नहीं काटा, कुछ नहीं करा, जाकर के नॉर्मली बात करिए, जिस तरीके से संविधान हमें अधिकार देता है बात करने का। लेकिन सर आप लोग आप किस अधिकार से बात कर रहे हैं? क्या कह रहे? सनातन, किस अधिकार से इन लोगों से बात कर रहे हैं? सर एज ए जर्नलिस्ट मैंने जो है मीडिया पत्रकार के तौर पे जो है हम गए थे वहां पे, मैं गया था, पहले रिपोर्ट मैं बना के लाया था, फिर साथ में गए, बातचीत करी कि भाई इसका जो है कोई कार्रवाई, मतलब इस पे जो है बीच का रास्ता निकाला जाए, इस तरीके नॉर्मली बात करी। अधिकार देखिए, सबसे पहली बात तो अगर कोई चीज, अगर किसी भी धर्म के अंदर अगर कोई चीज गलत दिखाई देती है तो संविधान ने हमें अधिकार दे रखा है अपनी आवाज को उठाने का, ठीक है ना? हमें अधिकार है, अगर हमारे धर्म के खिलाफ अगर कोई काम हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठाने का। हमने आवाज उठाई, सिंपल। So hold on, I'm interrupting that interview for a very brief moment. So basically they are confirming that they themselves had gone to the market, the fish market, and they're also confirming that they had gone to fish market 1, that is CR Park Market 1. Now the ground report that Amit Malviya has shared, we cannot confirm whether that ground report is being done from CR Park Market 1 or Market 2. But as far as Kartik Tyagi and Robin are concerned, they are confirming they had indeed gone to CR Park Market 1. That's one confirmation. As journalists, when they went there, they also confronted people. 25 days back,
they had gone there as a journalist. And I want to show you. I had done the research and I also found out their YouTube channel, alright? This is a 10-minute long video. Of course, because of copyright issues, we cannot really show the entire video on our channel. But I just want to briefly play this, very briefly play this. Ayyo. Okay. हनुमान जी के मंदिर के प्रांगण छोड़िए, दीवार से लगते हुए किस प्रकार से जो है आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर जो है सामने कैमरामैन को कहूँगा किस प्रकार से जो है यहाँ पर ये मीट का कारोबार जो है चल रहा है। आप बोलेंगे कुछ? आपको क्या लेना देना? ये लेना देना है कि मैं सनातनी हूँ और ये जो मंदिर है, मंदिर प्रांगण के अंदर ये इस प्रकार से यहाँ पर जो है पहले बना था कि ये मार्केट पहले बनी थी? इस समय मौजूदा स्थिति में यहाँ मंदिर है। बात वो नहीं है, अगर मंदिर मार्केट के बाद बना है तो मंदिर बनाने वाले का ने क्यों बनाया फिर इधर? मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। ऐसा हो नहीं सकता कि जहाँ पर मीट बिक रहा हो वहाँ पर जो है मंदिर की स्थापना कोई कर दे। अगर दे, ये बात एक लॉजिकली बात है। वो हमारी भावनाएं आहत हुई हमें देख करके ही। उनकी भावना आहत हुई है। जो है बिल्कुल दीवार से लगते हुए आप जो है जीव हत्या कर रहे हैं हनुमान जी का मंदिर होते हुए। मीडिया वालों से भी कहना चाहेंगे कि मंदिर से जो लगता हुआ आपने मार्केट अलॉट कर रखा है, इस मार्केट को कहीं और पे भी आप लोग अलॉट कर सकते थे। क्या इस दिल्ली के अंदर इस प्रकार से जो है धर्म के साथ इस प्रकार से जो है खिलवाड़ होगा? किस प्रकार से जो है CR Park मार्केट नंबर 1, दीवार से लगती हुई बिल्कुल CR Park मार्केट नंबर 1। सौराष्ट्र धर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के CR पार्क इलाके में। हिंदू है लेकिन ना जिस टाइम में अभी हुआ था उस टाइम कोई अभी अच्छे के प्रॉब्लम नहीं किया। किस चीज की प्रॉब्लम नहीं थी? जिसका दुकान मिला है, नहीं, दुकान किसका? डीडीए का दुकान है ये? डीडीए का दुकान है, ऑथोराइज है? वो तो पैसे लेके ये मार्केट ऑथोराइज नहीं लगता मेरे को, क्योंकि ये मार्केट ऑथोराइज नहीं लगता है मेरे को। मैं फिर से एक बार सुनाऊंगा। ऑथोराइज है? वो तो पैसे लेके ये मार्केट ऑथोराइज नहीं लगता मेरे को, क्योंकि डीडीए की मार्केट उस साइड में लगती है। लेकिन ये उनको जिस लगता प्रकार है से कि जो ये मार्केट ऑथोराइज नहीं है। तो अभी उनको लगता है, तिताश उनको लगता है मार्केट ऑथोराइज नहीं है। मेरा सहयोगी तिताश मुखर्जी, क्या आपको भी लगता है ये मार्केट ऑथोराइज नहीं है? व्हाट इज द ट्रूथ? वी हैव एक्सेस सर्टेन डॉक्यूमेंट्स, राइट? Yeah. So this is an RTI that was filed to check the legality of the market, and it clearly says that the space that the market is occupying has been approved and sanctioned by the DDA itself. Okay. Can you just read the portion of the RTI? This is with reference to your RTI application received in this branch on 2nd of May 2024. On the subject noted above, in this regard, the point-wise replies of your RTI are as under. Point number 1 pertains to engineering department. Point number 2, as per data available, number of fish platforms unit allotted in market 1 are 27, and number of fish platforms unit allotted in market 2 are 24. Now this has come from, look here, Delhi Development Authority. So these all fish platforms, the markets are all authorized, all right? They are not illegal. पर भाई साहब को लगा कि ये अनऑथोराइज्ड है, ये डीडीए का मार्केट उनको लगता नहीं, एंड उसके बाद वो चलते रहे। Before I just move on, I quickly want to show you 2 testimonies as he went on interacting with people. कुछ आपको क्या लेना देना? मुझे ये लेना देना है कि मैं सनातनी हूँ और ये जो मंदिर है, मंदिर प्रांगण के अंदर ये इस प्रकार से यहाँ पर जो है पहले बना था कि ये मार्केट पहले बनी थी? तो मार्केट, एक बात बताइए, मार्केट बना हुआ है लेकिन मार्केट में और भी तो दुकान खुल सकती है भाई साहब। आप सवाल का जवाब दीजिए ना। आपको आप आए हैं यहाँ इंटरव्यू करने लोगों का, आपको मालूम है यहाँ पहले क्या बना था? क्या बना था? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हमें तो ये पता है कि मैं नहीं जानता, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मंदिर पहले बना था या मार्केट पहले थी? इस समय मौजूदा स्थिति में यहाँ मंदिर है। बात वो नहीं है, अगर मंदिर मार्केट के बाद बना है तो मंदिर बनाने वाले का ने क्यों बनाया फिर इधर? मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। ऐसा हो नहीं सकता कि जहाँ पर मीट बिक रहा हो वहाँ पर जो है मंदिर की स्थापना कोई कर दे। अगर दे, ये बात एक लॉजिकली बात है। बात तो ठीक है, अगर मीट बिक रहा होगा ना तो वहाँ पे नहीं होगा। तो फिर अथॉरिटीज को रोज दिखता है ना। अथॉरिटीज ही तो अंधी है हमारे देश की, किस प्रकार से अथॉरिटी को जो है इस पर कार्रवाई करनी चाहिए कि भाई इनको जो है दूसरा स्थान देना चाहिए। जब मंदिर प्रांगण यहाँ पर है तो इनको दूसरा स्थान दे। भाई यहाँ से 150 मीटर दूरी पे जो है दे सकते हैं, कहीं पे उनके घर के बगल में भी दे सकते हैं, राइट? मंदिर की जड़ से लगता हुआ ये जो है मंदिर प्रांगण में दे, क्योंकि उनका घर तो मंदिर नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बात पे? जो मंदिर की दीवार से लगता हुआ है जो कारोबार चल रहा है मीट का, ये सही है गलत है? मीट अपने जगह पर है। बहुत लोग हमारे बंगालीज में
फिश को जो है वो पूजा में दिया जाता है, तो वो फिश को उस हिसाब से होली बना गया है। देखिए आप बंगाली में करते होंगे, लेकिन आप जिस कल्चर में, जिस स्थिति में आप रह रहे हैं, अभी आप दिल्ली के अंदर रह रहे हैं, बात समझना। तो दिल्ली के अंदर वो हमारी भावनाएं आहत हुई हमें देख करके ये चीज कि भाई इस प्रकार से जो है बिल्कुल दीवार से लगते हुए आप जो है जीव हत्या कर रहे हैं हनुमान जी का मंदिर होते हुए। अरे हनुमान जी का तो जो है तो कई सारे मंदिरों में हो रहा है भाई साहब, कई सारे मंदिरों में। आप आसाम में चले जाइए, कामाख्या देवी में भी जीव नहीं समझ रहे वो उन उस पर आवाज तो उठाई जा रही है। अब हम भी आवाज उठा रहे हैं कि भाई इस प्रकार से डीडीए ने जो है ये मार्केट जो यहाँ पे अलॉट कर रखी है, इस मार्केट को इन दुकानदारों को कहीं और पे दुकान दे दे, डीडीए मार्केट कहीं और पे दे दे, बिल्कुल लगती भी क्या जरूरत है यहाँ पे देने की। मंदिर भी तो शिफ्ट किया जा सकता है, कहीं शिफ्ट नहीं होया, जो स्थापना हो चुकी है मंदिर शिफ्ट हो सकता है। अरे भैया दुकान जगह पर तोड़ा गया है भाई साहब, मंदिर और मस्जिद कई जगह पर तोड़ा जा रहा है। देख सकते हैं आप लोग बागों की मतलब मानसिकता कितनी, देख सकते हैं लोगों की मानसिकता क्या है। ये ग्राउंड रिपोर्ट है, लेकिन सवाल ये असम के मुख्यमंत्री के पास है, मिस्टर हेमंत बिश्व शर्मा। This gentleman is saying, his name is Kartik Tyagi, he is saying that the animal sacrifice ritual which happens inside Kamakhya temple, he has a problem with that, and many other people have a problem with that, that objections have been raised about rituals which are in practice inside Kamakhya temple. Is this true? I mean, I have been inside Kamakhya temple multiple times, driven by absolute respect. माँ कामाख्या, किसने ऑब्जेक्शन किया है? और अगर कोई कामाख्या मंदिर के अंदर चलने वाला कुछ रिचुअल के ऊपर ऑब्जेक्शन क्रिएट कर रहा है या फिर ऑब्जेक्शंस रेज कर रहा है, क्या होगा रिस्पॉन्स असम के मुख्यमंत्री की? It's a very humble question. Now let's get back to the interview once again, as the interaction continued for almost 10 minutes between me and Kartik Tyagi. Also along with him was Robin. सर, ये धर्म के खिलाफ कैसे है? धर्म के खिलाफ ऐसे है क्योंकि मंदिर जो है पवित्र स्थल होता है, और पवित्र स्थल के है एक काली मंदिर भी तो है उधर। कहाँ पे? वहां पे सीआर पार्क में काली मंदिर है, लेकिन वो दूसरी साइड है, वो दूसरी साइड में है। लेकिन जो ये हनुमान जी का मंदिर है उससे लगती भी मार्केट है, नहीं बिल्कुल जस्ट लगती हुई। काली मंदिर से भी लगता हुआ मंदिर है। क्या कह रहे? काली मंदिर से भी जुड़ा हुआ बात कर रहे हैं ना, वहाँ पे कोई मीट बाजार नहीं है, वहाँ पे कोई मीट बाजार, वो सिर्फ काली माता का मंदिर ही है सीआर पार्क का, जहाँ पे जब भी नवरात्रों पे काफी अच्छा वहाँ प्रोग्राम करे जाते हैं। हम लोग भी जाते हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है वहाँ पे। बाकी सिर्फ कोई पॉइंट है सर, छोटे से क्लियर पॉइंट है, मंदिर के साथ नहीं होना चाहिए। जो भी नियम है 100-150 मीटर का, और उनको डीडीए ने ही दी है जगह, डीडीए ही जगह उपलब्ध करवाएं, क्योंकि ये गलती जो भी आ रही है डीडीए की आ रही है, ना कि वो बंगाली हिंदुओं की गलती है, ना मंदिर वालों की गलती। यानी वो नहीं, आप कह रहे हो मार्केट फिर इलीगल हो गया, क्योंकि अगर नियम है 150 मीटर में नहीं होना चाहिए तो मार्केट इलीगल है। ये भाई 150 मीटर का कानून है, ठीक है, लेकिन वो जो है डीडीए की गलती है, उसने जो है अलॉट क्यों कर रखी है। उन्होंने बोला भगवा गुंडे है, बीजेपी के गुंडे है। सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ, हमारा किसी भी दल से कोई वास्ता नहीं है। हम भगवा कलर अगर उस दिन पहना गया है तो हमारी भगवा, हम उसको शान मानते हैं। भाई अभी भी भगवा पहनता है, हाँ। तो भगवा कोई भगवा को आप गुंडा नहीं कह सकते, किसी भी रंग को हम गुंडे परिभाषित नहीं कर सकते किसी रंग से। और हमारे विचार भी यही है कि हमने किसी को कोई धमकी नहीं दी, सिर्फ और सिर्फ बातचीत को ही उन्होंने एक धमकी भरा रूप दिया गया। लेकिन सर सवाल लाजमी है ना, अगर मेरे को कोई थप्पड़ मारे, अगर मेरे साथ कुछ अन्याय हो तो मैं पुलिस के पास जाऊंगा। मैं तो समाज में पंचायत, मैं तो समाज में पंचायत नहीं लगा सकता ना सर, कैंगरू कोर्ट तो नहीं लगा सकता। अगर समझाना है तो एक सेकंड सर, अगर समझाना है तो आप डीडीए से जाके बात कीजिए। आपका अगर असुविधा है, प्लीज मुझे एक बार सवाल पूछने दीजिए। आप डीडीए से जाके बोलिए कि डीडीए आपके तरफ से गलती हुआ है, आप इस मार्केट को सही कीजिए, मंदिर से थोड़ा दूर कर दीजिए। ये वीडियो वायरल हुआ है ना, सेकंड वीडियो, इसके बाद हमारा जो बंगाली हिंदू है मार्केट के, उनसे हमारा यही वार्ता हुआ है कि बीच का कोई रास्ता निकालते। इसके बाद हमारा थर्ड स्टेप यही था। अभी हम जो फर्स्ट वीडियो बनाई थी ना, उसमें हम दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है उनको भी हमने ज्ञापन सौंपा था कि इसका थोड़ा आप हल निकालें। अभी हमारा थर्ड स्टेप यही था, क्योंकि वहां से भी कुछ नहीं हो रहा था, और हमारा थर्ड स्टेप था डीडीए के पास जाने का। उससे पहले तो ये काम कर ही दिया उन्होंने।
नहीं, और वहां लेकिन पे अगर आप डीडीए के पास ही चले जाते सबसे पहले। अरे आप एक बात बताइए, उस पे अंदर जाकर के बातचीत करके जब भी तो पता चला है किसने आपको अलॉट कर रखी है, या बिना बातचीत करे आपको पता चल जाएगा, या हमें पता चल जाएगा? हम बातचीत करने गए, सर बातचीत करी हमने कि वो तो 25 दिन पहले ही आपको मालूम चल गया सर। आप पहली दफा जब गए थे 25 दिन पहले, तभी आपको मालूम चल गया ये डीडीए का अलॉट किया मार्केट है, बाकायदा लीगल मार्केट है, सबके पास कागजात है, डीडीए ने अलॉट किया। सो डीडीए जब अलॉट किया, डीडीए तो इलीगल काम नहीं किया, डीडीए के तरफ से इलीगल था, लीगलाइज किया है हर एक मार्केट को। आपको प्रॉब्लम है इस मार्केट का जो मंदिर से लगा हुआ है, तो आप डीडीए के पास जाके कंप्लेन कीजिए। सर डीडीए के पास एक बात सुनिए मेरी बात, डीडीए के पास हम कंप्लेंट करेंगे, वो एक अलग मैटर है, लेकिन हमने वहां पर जाकर उनसे बातचीत करी, तो ये बातचीत करना गुनाह है क्या देश के अंदर? गुनाह है कि भैया बातचीत करना गुनाह नहीं है, लेकिन अगर खुद के ऊपर कोई जिम्मेदारी ले लेते हैं कि आप ये सुधार करेंगे, तो आइदर ये जिम्मेदारी किसी ने आपको दिया है, या फिर ये जिम्मेदारी को पालन करे, इसके पीछे कोई मकसद है। तो ये जिम्मेदारी किसी ने आपको दिया, अगर नहीं दिया है तो मकसद क्या है? भैया आस्था नाम की भी कोई चीज होती है, अपना धर्म नाम की भी कोई चीज होती है, और बोलने का अधिकार जो है हमें संविधान ने दिया है, ठीक है? सर जो बंगाली है, जो मछली खाते हैं, क्या वो हिंदू नहीं है? सर उनका भी तो आस्था है ना सर। एक बात बताइए, नहीं किया। एक बात बताइए, आप कल्चर वाइज आप वो आपका कल्चर है, ठीक है? अभी मैं सात्विक पूजा करने वाला व्यक्ति हूँ, बात समझना, ठीक है? उनका कल्चर है, वो खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमें आपत्ति कुछ नहीं है, वो उनका कल्चर है। हमारा कल्चर जो है वो नहीं इस चीज को अलाउ करता। हाँ, नहीं समझ गए सर। आप लोग का वीडियो में ये साफ साफ सुनाई दे रहा है कि ये शास्त्रों में कहीं पे लिखा नहीं है कि भगवान को, काली माँ को मछली दिया जाता है। हमारे सात्विक में कहीं भी नहीं लिखा गया कि आप मांस खाओ। हम सात्विक माँ काली को मछली भोग में दिया जाता है सर, प्रसाद में दिया जाता है। लीजिए, अगर आप महाभारत पढ़ लीजिए, रामायण और महाभारत में अगर कोई बोल दे कि आप वहां पे सिर्फ मछली बाजार नहीं है सर, वहां पे मुर्गे भी कट रहे हैं, सिर्फ एक चीज नहीं कट रही है। और इसीलिए था नहीं, आपने कहा कि आपके शास्त्रों में कहीं पे नहीं है कि मीट खाया जाए, लेकिन आप मुझे बताइए माँ काली को मछली प्रसाद में दिया जाता है। सर वो आप बंगाल के कल्चर की बात कर रहे हैं, आप यहाँ पर आइए ना, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा में आइए, यहाँ पे कहीं पे भी नहीं होता। तो अगर कोई बंगाली दिल्ली में रहे तो उसको दिल्ली के तरह रहना पड़ेगा। वो खाए, लेकिन हमारी भी तो धार्मिक भावना। सर वहां पे मेरा एक ही शब्द बोला गया, आपके धार्मिक भावना जो है उसको सम्मान करते हैं, आप भी किसी और का धार्मिक भावना को सम्मान कीजिए। अगर आप कह रहे कौन सा शास्त्र में लिखा है कि मछली मीट आप दे सकते हैं, आप तो किसी और की धार्मिक भावना को सवाल उठा रहे हैं सर। ये भी बोल रहे हैं साथ में, जो मान रहा है वो मान रहा है, ये भी शब्द साथ में जुड़े हुए हैं उसके। सर आपने कहा साफ कहा कि शास्त्रों में कहीं पे लिखा नहीं है। नहीं लिखा हुआ सर, रामायण और महाभारत में आप दिखा दीजिए सर, एक शब्द भी लिखा हो कि हम खा सकते। नहीं, रामायण और महाभारत दो अपनी जगह पे है, लेकिन माँ काली भी अपनी जगह पे है, माँ दुर्गा भी अपनी जगह पे है। सर मैं सुबह डेली दिया जलाता हूँ महाकाली के आगे, ये मेरा भी है। महाकाली ये नहीं कहती कि सिर्फ मछली खाने वाले ही पूजा करें, हमारी भावना हमारे साथ जुड़ी हुई है, बंगाली हिंदू की भावना उनके साथ जुड़ी हुई है, हमारा उनके साथ कोई दुश्मनी नहीं है। आप पूरी वीडियो देखेंगे, अभी मैं एक पोस्ट और करूंगा, आप उसमें हमारे की वार्ता भी सुन सकते हैं। उसमें किसी को थ्रेट नहीं किया गया, कोई धमकी नहीं की है। ये सिर्फ एक ही मुद्दा है कि बंगाल में राजनीति कैसे चमकाई जाए, बीजेपी के खिलाफ बोला जाए, हमारा किसी दल से कोई नाता नहीं है। और उन्होंने जो भी बीजेपी या एक भगवा को, एक रंग को उन्होंने गुंडा बोला गया, इस भगवा पे आज हमें पूरा मान सम्मान आज हम भी उनकी करते हैं। भगवा रंग पाने के लिए हमारे कितने शूरवीरों ने अपनी जानें तक दी है। भगवान श्री राम भगवा पहनते हैं, क्या हम उनको भी कुछ गलत बोल देंगे? आपने डीडीए से बात किया अभी तक? क्या कह रहे? डीडीए से बात किया? डीडीए से भाई जब मार्केट में हम गए, मार्केट वालों से बातचीत करी कि भाई हमारे साथ बताओ क्या करना है, तो उन्होंने कहा भाई डीडीए से बातचीत करेंगे। उससे पहले से बात किया सर? सर डीडीए से बातचीत करने के लिए हम अकेले जाएंगे क्या?
जो मार्केट वाले हैं वो भी तो साथ में जाएंगे, जब भी तो किसी चीज का समाधान निकलेगा। नहीं, आप डीडीए के पास जाके चिट्ठी भी तो दे सकते हैं। आप जैसे कह रहे हैं कि आस्था पे आहत हुआ है, तो डीडीए को चिट्ठी दीजिए। हाँ वो ठीक है, हमने सीएम को चिट्ठी दे दी थी, ठीक है ना। उन्होंने हमें चिट्ठी दी है, निस्तारण करेंगे। क्या कह रहे हैं आप? डीडीए को चिट्ठी दी, पिछले 10 दिनों में आपने चिट्ठी नहीं दिया। सर? सीएम को चिट्ठी दे दी तो डीडीए से ऊपर होता है सीएम। तो सीएम को जब चिट्ठी दे दिया, उसी तक आप मैटर को रखिए, सीएम को हैंडल करने दीजिए। आप मार्केट में खुद क्यों चले गए सर? तो सर जाना कोई गुनाह है क्या? बातचीत करना कोई गुनाह है? नहीं, कोई गुनाह नहीं है, लेकिन आप जब कुछ जिम्मेदारी खुद पे ले रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि सीएम को बता रहे, सीएम का काम करने दीजिए, एडमिनिस्ट्रेटिवली काम करने दीजिए। आप पुलिस के पास जाइए। नहीं, मेरी बात, हम डीडीए से भी बातचीत करेंगे इस विषय में। बाकी जो भी कुछ है, ये वीडियो जो है, मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूँ, जो भी ये वीडियो सर्कुलेट किया गया है, इसके अंदर नेगेटिव पॉइंट्स बना करके सर्कुलेट किया गया। हमारा जो है किसी भी दल से कोई मतलब नहीं है, हम आम नागरिक हैं देश के, ठीक है। हमारी धार्मिक भावनाएं आयत हुई है, तो हमने जो है इस पर जो है अपने विचार प्रकट करेंगे। Well, they claim they were simply expressing their legitimate concerns. But their narrative or their perspective raises the larger question as whether this is an isolated incident or there is a narrative in play which essentially challenges the very fabric of our pluralistic society. And who are they? Who are they essentially institutionalizing the idea of Sanatan Dharma that they believe in? Am I not a Sanatani? Am I not a Hindu? Or those Bengalis who are Hindus and eat fish are not Sanatani? जगह जगह जाके आप ये देख रहे हैं कि कहाँ पे मंदिर के साथ सटा हुआ मछली की मार्केट है और इससे आपको आपत्ति है। ये डेमोक्रेसी है, आपका आपत्ति हो ही सकता है, लेकिन आपके आपत्ति के ऊपर भी आपत्ति हो सकता है। So we don't agree with your आपत्ति, we don't agree with your objection. We are simply asking, in democracy, questions are fundamental. So you're simply asking as where is that office from where I can get the certificate of the ideal Sanatani. In the YouTube video he has published, he is clearly stating to a gentleman, जो एक बंगाली है, आप जहाँ पे रह रहे उस जगह की culture, in a way, he is essentially stressing that where people are living, the culture of that land has to be respected. So tomorrow, somebody comes to Bengal or somebody comes to Kolkata, even if he or she is a vegetarian, has to respect the culture of Bengal or Kolkata and start eating fish. Should anyone impose that idea on a vegetarian or even a non-vegetarian who doesn't like fish? I mean, how is that logical? We will still not support that. आप अगर फिश मार्केट पे नहीं जाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जो फिश मार्केट में काम कर रहा है वो भी बंगाली हिंदू है, उनको प्रॉब्लम नहीं है मार्केट में काम करते करते हनुमान जी की तरफ देख के हाथ जोड़ के प्रणाम करने में। उसी बंगाली मार्केट के एकदम बगल में एक काली मंदिर भी है। जो काम कर रहे हैं उनको उससे भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको प्रॉब्लम है, तो आपके प्रॉब्लम आपके पास रखिए ना। कौन बोला आपको जाने को? कलकत्ता, बंगाल की हर एक मार्केट में आपको मछली मिलेगा, आपको मीट मिलेगा, आपको सब्जी भी मिलेगा। सुन लीजिए, कलकत्ता की हर एक मार्केट में यह सनातनी सेंस काम करता है, जहां पे फिश मार्केट भी एग्जिस्ट करता है और मार्केट के बीचों बीच मंदिर भी एग्जिस्ट करता है। यह है एक एग्जाम्पल। दिस इज गरियाहाट मार्केट एंड यू टॉक अबाउट श्याम बाजार मार्केट, गरियाहाट मार्केट, चारू मार्केट, बो बाजार मार्केट, एनी मार्केट, और हर एक मार्केट के बीचों बीच आपको मां काली का मंदिर तो जरूर दिख जाएगा। यकीन नहीं हो रहा है ना आपको, इसीलिए तस्वीर दिखा रहा हूं। यह मंदिर है गरियाहाट मार्केट की, सॉरी, ये तस्वीर है गरियाहाट मार्केट की और ये मंदिर गरियाहाट मार्केट के बीचों बीच खड़ी है। रोज हर सुबह जो इस बाजार में बैठ के सब्जी बेच रहा है, मांस बेच रहा है या फिर मीट बेच रहा है, चिकन बेच रहा है, अंडा बेच रहा है, भगवान की पूजा की सामान बेच रहा है,
फूल बेच रहा है, ग्रोसरी आइटम बेच रहा है, सब जाके इस मंदिर में पूजा करते हैं. Well, Moha Moitro, who kind of started this debate, she still holds on to her position, and this is what she has said. I think everybody has seen the horrifying visuals of the lumpen BJP goons threatening the Bengali shopkeepers of Chittaranjan Park in the heart of Delhi. Chittaranjan Park is a Bengali colony which is proudly Bengali. Bengalis are a proud fish-eating people. The Kali temple there and the temples there have been built by the community, and this particular temple has actually been built by the shopkeepers and the business community of Chittaranjan Park. You can see how in broad daylight, with complete impunity and audacity, the BJP's goons are threatening shopkeepers and telling them that you cannot have a shop here. Is the BJP going to tell us what we are going to eat and where we can have legal shops? Is the BJP going to tell us that we have to eat dhoklas and say Jai Shri Ram 3 times a day? We have always maintained that the BJP is not for Hindus. These are Hindu shopkeepers. The BJP is anti-Muslim, they are anti-Hindus, they are anti-constitution. Everybody can see the real colors of the BJP in this, and I hope that people stand up against this and see the real colors of the BJP. And you have some lame statement from the BJP saying, oh, we don't condone this. If you don't condone this, have those people been arrested? Have you arrested those people? I guarantee you, had one of them been a Muslim and had this happened, you would have put them behind jail on non-bailable UAPA charges. You have seen these people on video. Have any one of them been arrested? I don't know about others, but if someone tells me as whether to choose fish over my faith or faith over my fish, I will just look back into the eyes of such people. Whether I'm in New Delhi or in Kolkata, whether I'm in Lucknow or in Durgapur, whether I am in Ahmedabad or Asansol, I would simply say, mind your own business. Live and let us leave. On that note, I take your leave. Thank you for watching.